ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਰਵਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਵਾਦ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ ਡਿਫਾਲਟਰ। 4 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਹਿਦਾਇਤ। ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ। ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ। ਡਿਪੂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਡਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਜਵਾਹੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 1500 ਏਕੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 400 ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं। अशरफ काजमी मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले ऑनलाइन पे मौजूद ने। अशरफ, किस तरह से देखें इस मीटिंग को? अभी पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ और मीटिंग अभी शुरू होगी, लेकिन एजेंडे की अगर बात करें, किस एजेंडे पर यह मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? गगन, देखिए, एजेंडा तो बहुत साफ है कि राज्य के जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो अमृतपाल सिंह तूफान का नाम है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जैसे उनके लगातार जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ये कह रहे हैं कि ये 1980 और 90 के दशक का हालात में सरकार को पहुंचाया जा रहा, तो वो एक थ्रेट है राज्य के लिए। क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मामला भी लगता है, तो केंद्र सरकार को भी इसमें सजग है। राज्य सरकार से भी इस बारे में चर्चा की जा सकती है। राज्य की कानून व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया जाए, कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, उसको देखते हुए की जाए। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा अमृतपाल को लेके थाने में जैसे सब लोग पहुंच गए थे, उनके समर्थक पहुंच गए थे, वो एक बड़ी चुनौती राज्य की पुलिस के लिए थी। तो वो सब बातें यहाँ पे होंगी कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको कैसे बनाए रखा जाए और अमृतपाल तूफान को लेकर केंद्र और राज्य
कैसे आगे रणनीति पर काम करे। गगन जी अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ काज़मी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे के सूबे की सुरक्षा के कानून व्यवस्था के मसले जिहड़े ने वो विचारे जाएंगे। अमृतपाल का मसला जिहड़ा हैगा वो विचारिया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर जिहड़ा मसला हैगा उसनूं भी विचारिया जाएगा। कौमांतरी सरहद पारों जिहड़ा हैगा इनफिल्ट्रेशन हैगी ड्रोन की, वो मसला विचारिया जाएगा। पंकज कपाही मेरे सहयोगी होर ज़्यादा जानकारी के नाल जुड़ रहे हैं इस वेले। पंकज, कई सारे मसले ने, सूबे की सुरक्षा व्यवस्था का भी मसला है, कानून व्यवस्था का भी मसला है, बॉर्डर स्टेट हैगी है, ड्रोन की जिहड़ी इनफिल्ट्रेशन है उसका भी मसला है, नशे की तस्करी का भी मसला है। होर की कुछ इस चर्चा दे विच हो सकता है कि कुछ जिहड़ा हैगा विचारां जिहड़ियां ने वो कीतियां जाणियां ने? पंकज देखो, काफी अहम मीटिंग इस वेले चल रही है मुख्यमंत्री दी अमित शाह होरां दे नाल, क्योंकि गैंगस्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਉਹ सरहद के उत्ते मौजूद है और ड्रोन की एक्टिविटी जी लगातार वधी है। पाकिस्तान के जरिए जोड़े पंजाब के हथियार से ड्रग्स आ रहे हैं वो किस तरीके नाल रोके जा सकन, ताकि एक पंजाब नूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक ये भी रिपोर्ट दी है कि जो ड्रग तस्कर ने पाकिस्तान उन्होंने मदद कर रहा है। तो ये सारे मसले रखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ MHA ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ISI ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨ पंकज, इस सारे मसले के विचाले एक होर अहम गल है, पंजाब सरकार का बजट इजलास, पंजाब की विधान सभा के बजट इजलास शुरू होना है। गवर्नर के नाल जिस तरीके के संबंधां विच एक तलखी थोड़ी जी वेखण नूं पिछले दिनों के विच मिली है और बीते दिनी गवर्नर ने भी मुलाकात की सीगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल, कि उस मसले नूं लैके भी थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। देखो, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी वालों एक तो यह कहा जाता है कि केंद्र दे विच बीजेपी सरकार है जिहड़ी सूबा सरकार नूं तंग करती है, लेकिन दूजे पासे क्योंकि केंद्र सरकार की जरूरत भी है और केंद्र सरकार दे नाल तालमेल भी बना के रखना है, तो जिहड़े सूबे के मसले ने गैंगस्टर नूं लैके, ड्रग्स नूं लैके, ये सारे मसले रखे जाएंगे जितों तक राजपाल का, क्योंकि कल राजपाल का जिहड़ा बजट के दौरान बजट सैशन के दौरान जिहड़ा भाषण होना है कि वो इन बिन सरकार जो दिंदी है उसे तरीके नाल भाषण दिता जाएगा, या उस दे विच जिहड़े सिंगापुर प्रिंसीपल भेजे गए ने वो पॉइंट पे किस तरीके नाल रखते हैं अगर सरकार अपनी स्पीच दे विच दिंदी है, तो काफ़ी अहम है। और अज की मुलाकात थोड़ी देर बाद मीडिया के नाल मुखातिब होणगे मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये जानकारी CMO तो भी मिल रही है जो मीटिंग खत्म होएगी, तो ये मसलियां नूं लैके CMO वालों जानकारी भी मिली है कि गलबात जिहड़ी वो कीती जा रही है। जी, सो कई मसलियां ते गलबात जिहड़ा हैगा हो रही है कुल मिला के, और कई सारे मसले विचारे जाने ने। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। कई सारे मसले ने, कई सारे मसलों पर चर्चा हुई और हालांकि मुख्यमंत्री जो ये मीटिंग करके बाहर निकलते हैं कि वो मीडिया के नाल गल करते हैं और मीडिया को की ब्रीफ करते हैं, की दसते हैं, ये वेखना नहीं करते। उधर ड्रग ट्रैफिकिंग ते पुलिस की वड्डी मीटिंग हुई है। 6 सूबों के पुलिस मुखिया ने अहम बैठक की है। उत्तर भारत के विच नार्को टेस्ट दीआं चुनौतियां ते चर्चा हुई है। बॉर्डर एरिया दे विच नशे दे नकेल कसन नूं लैके चर्चा की गई है। आपसी तालमेल नूं लैके चर्चा की गई है। एक्शन दे लई वर्किंग ग्रुप बनाउण ते भी विचारां होईयां ने। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ते दिल्ली, सो पहाड़ी सूबे 3,
ਔਰ 3 ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। खराब सेहत की वजह करके डीजीपी गौरव यादव इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, तो अर्पित शुक्ला एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर इस मीटिंग के शामिल हुए। प्रवीण रंजन जी हमारे साथ हैं। सर, आज एक हाई लेवल की मीटिंग जो की गई है, कई चीज़ों पर इश्यूज़ पर बात हुई है, किन किन इशू पर सहमति बनी है और किस तरह से आप देखते हैं जो आज? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम सभी स्टेट्स जो ड्रग की समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, उन सब स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसमें कि हमारा डिमांड साइड को कर्व करना, उसमें हमको अवेयरनेस बढ़ाना बच्चों में, स्कूल्स में, उसको हम उस साइड पे भी काम करना, और सप्लाई साइड जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सप्लाई में, उनके ऊपर कैसे हम नकेल कसें, इसके ऊपर काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई है। और चूंकि ये सब एक स्ट्रैटेजी का पूरा डिटेल का पार्ट है, तो इसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि लीगल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं गैंगस्टर्स के खिलाफ या ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ, प्रोसिक्यूशन कैसे हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, फोरेंसिक कैपेसिटी अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फोरेंसिक कैपेसिटी बहुत ज़रूरत है, कोर्ट्स ने कई बार कहा है हमको, उसके ऊपर हम कैसे काम करें, और जेलों के अंदर सर्विलेंस, ये जो मेन मुद्दे थे, आज इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। एक और मुद्दा जो इससे कनेक्टेड है वो है प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स की सप्लाई और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने बड़ी चर्चा की। हमारे साथ डीजीपी उत्तराखंड हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। जी बहुत धन्यवाद। सर, आज जो मीटिंग हुई है ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर, कोऑर्डिनेशंस को लेकर, किस तरह से सहमति बनी, किस तरह से तालमेल होना चाहिए, किस तरह से? देखिए, बहुत ही यूजफुल मीटिंग रही, बहुत ही उपयोगी मीटिंग रही, और इसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली के अधिकारी थे, और जितना भी, और एनसीबी के भी अधिकारी थे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के, और ड्रग सप्लाई चेन को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उनके ऊपर उनकी संपत्तियों को जब्त कराया जाए, और कैसे रिहैब में कैसे क्या क्या एफर्ट्स हैं, एक दूसरे के द्वारा क्या अच्छी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, उन सब पे चर्चा हुई। बिल्कुल। तो सर, अगर आप बात करें उत्तराखंड को लेकर, बॉर्डर एरिया, कई बॉर्डर एरिया लगते हैं, उसको लेकर किस तरह से आप लोगों ने ड्रग्स को किस तरह से नकेल कसी है, किस तरह से ऑपरेशन जो है वो उत्तराखंड पुलिस का चलता है, किस तरह से आपकी और भी ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो रही है? देखिए, वही है बेसिकली, जो ड्रग्स कहाँ से आ रही है उसी सप्लाई चेन को लिंकेजेस फॉलो करना होता है। बिल्कुल। एक आदमी ने दूसरे से खरीदा, दूसरा कहाँ से लाया, तो इस तरह से छोटी मछली से बड़े मगरमच्छ तक पहुँचा जाता है, तो वही हमारा प्रयास रहता है। यद्यपि अधिकांश ड्रग्स जो खासकर हेरोइन है वो उत्तराखंड में बरेली साइड से आ रही है, परंतु बाकी सारे स्टेट्स का आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर के सफल। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अज एक बड़ा फैसला लिया है। चोण कमीशन की नियुक्ति दे विच बदलाव किया है। हुण पैनल के जरिए नियुक्ति की जाएगी। मुख चोण कमिश्नर ते चोण कमिश्नर की नियुक्ति पैनल के राही होगी। पैनल दे विच पीएम, चीफ जस्टिस ते विरोधी धिर दे आगू शामिल होंगे। पैनल की सिफारिश तो बाद राष्ट्रपति फाइनल जिहड़ा हैगा मोहर लगाणगे। चोणां दे विच निरपक्षता ते पारदर्शी बनाउण दे लई दायर पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पैनल के जरिए हुण चोण कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। पैनल के विच प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ते विरोधी धिर दे आगू शामिल होंगे। उपाध्याय जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं, और जिस तरह आप पहले से मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग को पारदर्शी बनाया जाए और ताकतवर बनाया जाए, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश? देखिए, इस समय चुनाव के दौरान भारत में जाति का जहर घोल दिया जाता है, भाषा का जहर घोला जाता है, क्षेत्र का जहर घोला जाता है, कालाधन बंटवाया जाता है, शराब बंटवाई जाती है, पूरा इलेक्शन सिस्टम को पल्यूट कर दिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन उसको शांत होकर देखता रहता है। इसलिए हमने 5 मांग किया था कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट बजट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए, रूल मेकिंग पावर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो हटाने का तरीका एक होना चाहिए, यानी तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स को इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इक्वल सिक्योरिटी होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए पार्लियामेंट में इंपीचमेंट आता है, लेकिन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को आप सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा सकते हैं, तो अब कम से कम वो खत्म हो जाएगा, सबको इक्वल सिक्योरिटी रहेगी। और अपॉइंटमेंट अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, तो अच्छा है। इससे कम से कम कोई आरोप नहीं लगाएगा, जो अभी तक लोग आरोप लगाते रहते थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि नहीं ये तो फला पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, फला पार्टी को कर रहा है। अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई तीनों रहेंगे,
तो कोई भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाने से 10 बार पहले सोचेगा। मुझे लगता है जो लोग अभी तक चुनाव आयोग पे उंगलियां उठाते थे, अब उनका मुंह बंद हो जाएगा, अब दोबारा इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है, इंडिपेंडेंट बजट है। लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है, इंडिपेंडेंट बजट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, पूरे देश में चुनाव कराता है, ना उसके पास इंडिपेंडेंट बजट है, ना इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है। बार बार उसको सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि हाँ जी हमको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। इलेक्शन कराना अपने आप में एक एक्सपर्ट काम है, तो वहां पे एक्सपर्ट होने चाहिए। तो अब जब इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा तो इलेक्शन कमीशन खुद ही अपॉइंट करेगी, और जो अपॉइंट हो जाएगा वो पूरी लाइफ टाइम रिटायरमेंट होने तक इलेक्शन कमीशन में ही रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी स्किल ज्यादा अच्छी होगी, एक्सपर्टीज ज्यादा होगी, उसके ऊपर ट्रांसफर का खतरा नहीं रहेगा, इसलिए किसी सरकार को ओबलाइज करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर राजोआणा की पटीशन ते फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। राजोआणा ने रहम की पटीशन पाई सी ते रहम की पटीशन ते जल्द फैसला लैण की मंग की गई है। एसजीपीसी के वलों यह रहम की पटीशन पाई गई सी ते केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला दिता ते कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। केंद्र कह रहे 27 साल तो जेल के विच राजोआणा बंद ने। 2012 तो रहम की पटीशन पेंडिंग है। मौत की सजा के मामले में लंबी देर करना मनुखी अधिकारों का घाण है। राजोआणा के वकील ने दलील दी। राजोआणा की उम्र 56 साल हो गई है। जदों घटना हुई उदों वो नौजवान सन। वकील ने यह भी कहा कोर्ट को हुण अपना फैसला सुनाना चाहिए है। वकील ने अपील की जे रहम की पटीशन से फैसला नहीं हुंदा तो ऑप्शन के तौर पर राजोआणा नूं पैरोल से छड्डिया जा सकता है। यह भी गल निकल के सामने आई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह रजवाना की फांसी की सजा माफ करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल बलवंत सिंह रजवाना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यह कहा गया कि उनकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबे समय से लंबित है और ऐसे में अभी भी सरकार के द्वारा उस दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस पूरे फैसले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और यह कहा गया कि अगर बलवंत सिंह रजवाना के रिहाई पर सरकार कोई फैसला लेती है तो जिस तरह अभी आईबी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और अगर उनकी रिहाई पर कोई फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है तो पंजाब ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लिहाजा सरकार को इस पूरे मामले में कुछ समय दिया जाना चाहिए। हालांकि मुकुल रोहतगी जो बलवंत सिंह रजवाना के वकील हैं उन्होंने सरकार की इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि बलवंत सिंह रजवाना इस पूरे मामले में अभी रिहाई के लिए कहीं ना कहीं पेशगार हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि लंबे समय से उनकी जो दया याचिका है वो राष्ट्रपति के पास लंबित है, लिहाजा ये मौलिक अधिकार का हनन है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना बेहद अहम होगा कि बलवंत सिंह रजवाना के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला सुनाती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर तलवंडी साबो दे विच एक होर रजवाहे दे विच पाड़ पिया। पिंड गुरुसर जगह दे खेतां दे विच पानी भर गया। 400 एकड़ तो वध कणक दी फसल बर्बाद हुई है। पिंड वासी ते नहरी महकमे दे वल्लों पूरे जा रहा है रजवाहा जिहड़ा हैगा ते किसानां दे वल्लों मुआवजे दी मंग कीती जा रही है। बीते दिन भी तलवंडी साबो विच रजवाहे च पाड़ पिया सी और उस तो बाद अज फिर ये तस्वीर सामने आई है। 400-500 किले पानी च हो गया, खत्म हो गई कणक। हाँ जी, 6 महीने की फसल होंदे बंदा जी मूँह नहीं झाकदा, खर्चा करी बैठा हुंदा जी। ते हुण भी वड्ढण दी वारी आ गई, महीना रहिंदा 2 महीने ते बंदे नूं आस सीगी हुण आह काम हो गया। नहीं मींह मार जांदा जी, कोई गड्ढे वारी मार जांदी है। ऐगती बिया सूआ टुट जांदा। की कारण माने सूआ क्यों टुटदा हैगा सर? ये महकमे दी अणगहली है जी, निगाह नहीं मारदे। कुछ सूआ भरिया हुआ सीगा जी, नाला बंद होईयां पईयां सी। ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ट्रक आ रहा है, दूजे पासों पिकअप गड्डी आ रही है। दोवें टकरांदे ने एक दूजे दे नाल, आमो सामने टक्कर हुई है। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਰਦਵਾਰ ਤੋਂ ਭਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਟਰੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟਮੈਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਂਗਲੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਣੀ ਓਵਰਫਲਾਈ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 60-65 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਖਵਾਏ। ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਰਖਵਾਇਆ, ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ